I taught you how the bus reached in the destination. In the town, all the passengers got off. They went for their business. Still, Bali is inside the bus because she wanted to return from the same bus by giving 30 paise more. Since she don't have any job, any work, only she wanted to take a rides of the bus. So after asking a lot of question by conductor, she accepted that I finish my work because I wanted to do only rides. I don't have any work. So now let us start chapter 4. Today part 4. Would not your mother be looking for you? Would not your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. When he gave the ticket again, returning ticket, then he asked, your mother is not waiting for you. क्या आपकी मम्मा आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही होंगी? No, no. No one will be looking for me, she said. उसने कहा कोई नहीं, मेरी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा होगा. The bus started and again there were the same wonderful sights. The same sight was going what it was in the way of going to town. The same sight was because the bus was same and the way was also the same. The same sight was going whatever she looked into the during she was going to the town. बस में जाते समय जो सीन उन्होंने देखा वही सीन देख रही है. अंतर ये था कि एक बार लेफ्ट की तरफ दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ राइट की तरफ दिखाई पड़ रहा है. बस इतना ही का डिफरेंट हुआ होगा. बस में यही होता है, हम जाते हैं तो लेफ्ट की तरफ दिखाई पड़ गया और लौटते समय इधर का दिखाई पड़ता है. बस में तो यही होता है. तो द सेम इज गोइंग टू बी हियर. यस, Vali was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Means she was not feeling boring because she wanted to see everything what the sight was coming on the way. So she was not feeling boring. उन्हें बोरिंग नहीं हो रहा था क्योंकि हर एक सीन को वह देख लेना चाहती थी. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अचानक उन्होंने देखा एक मवेशी जो है रोड पर पड़ी हुई है क्योंकि एक तेज जो गाड़ी है उसे क्या कर चुका था, स्ट्रक मैंने धक्का मार चुका था और वो जो है गाय और एक मवेशी जो है रोड पर पड़ी हुई थी. She saw a young cow, उसमें भी जवान गाय है. यंग काउ लाइंग डेड बाई रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल. जो एक्सीडेंट हुआ है फास्ट मूविंग व्हीकल से, मतलब तेज गाड़ी से. ये शो कर रहे हैं राइटर कि ऑलवेज कंट्रोल योर सेल्फ वाइल यू आर ड्राइविंग. स्पीड मस्ट बी इन योर कंट्रोल. Now there was accident because the vehicle was very speed, very fast. Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वली कंडक्टर से पूछती है क्या वही गाय तो नहीं है जो जाते समय रास्ते में मिली थी? क्या सेम काउ तो नहीं है? The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने कहा, नोडेड मतलब यस. इन दिस वे बली बिकेम वेरी सैड टू हियरिंग व्हाट हैड हैपन. और यह सुनते ही बली उदास हो गई क्योंकि गाय मर चुकी थी. अब nodded and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. Just few hours ago,
शी वाज लवेबल मीन्स everyone was loving her. Very charming, very beautiful looking she was. But now she is dead. No one going near her. Just she is lying on the road. What is this? That's why Bali became very sad. That's why Bali became very sad. Because few hours ago, just see the cow the same in a charming way. She was laughing, running, shouting, but now she is dead, lying on the road. So she became very sad. Who became very sad? Bali became very sad. Blood all over. There was a blood and blood all over means everywhere there was a blood. It means that she was dead. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. Here haunted means return repeatedly. Haunted means come again and again. The same sight should come again and again. That is called the haunted. Haunted means द सेम सीन कम अगेन एंड अगेन. जो सीन आपको बार बार आपके माइंड में आता है उसको क्या बोलते हैं? हॉन्टेड. वही सीन बार बार उसके मन में चल रहा है डेड बॉडी का. हॉन्टेड हर, डैम्पेनिंग हर इन द ऑर्गेज्म. डैम्पिंग मीन्स मेकिंग लेस, मैंने डिस्ट्रॉइंग. उसकी जो हैप्पीनेस था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था. हैप्पीनेस क्या हो चुका था? डिस्ट्रॉय हो चुका था, मैंने डैम्प हो चुका था, समाप्त हो चुका था सब कुछ. खुशी जो है छीन चुके थे उसके. डैम्पनिंग हर इन द ऑर्गेज्म, उत्साह. सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो. अब खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी. जाते समय शी वॉज वेरी एक्साइटेड. She wanted to look everything, but now she became very sad and just stopped to look into the bus. Now she is very sad. She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40. She stood up. 3:40 exactly she stood up, stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." Now the time came when the bus arrived at her village. She got up from the bus and told to conductor, "See you again." मतलब फिर मिलेंगे. सर, फाइनली शी इज टेलिंग सर. कंडक्टर को वो सर बोलती है. Okay, madam, he answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us. And don't forget to bring your fare. जब भी आपकी इच्छा हो यात्रा करने की, आप आ जाना मैडम, लेकिन फेयर लाना मत भूलना. फेयर मतलब, फेयर मीन्स FARE. फेयर, फेयर मीन्स पैसे, किराया. FARE, फेयर मतलब मनी. फेयर मतलब मनी. रेंट फॉर बस, रेंट फॉर बस. और दैट इज ए फेयर. फेयर मतलब मेला, राइट. और फेयर मतलब क्लीन भी होते हैं, क्योंकि फेयर एंड लवली यही है ना, फेयर एंड लवली. तो फेयर मतलब क्लीन. फेयर मतलब क्या होता है? क्लीन भी होते हैं और मेला भी होते हैं. सेम वर्ड है, स्पेलिंग सेम है बेटा. हेयर दिस वन, बट दिस इज नॉट फेयर. यही है, दिस इज नॉट फेयर मतलब क्या होते हैं? अच्छा नहीं किया, मतलब साफ आपने के नाम नहीं किया, यही फेयर है. मैंने कोई ना कोई गंदा काम आपने किया तब ना बोलते हैं दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि फेयर से पहले नॉट लगा दिया था आपने. क्लियर? तो आपने देखा
कि ड्राइवर जो कंडक्टर है लास्ट वक्त भी वो मजाक करता है, बोलता है मैडम, और मैडम बोलने के बाद जो है वो जो है मैडम बोलता है और मजाक में एक शब्द बोल देता है, जब भी आपको यात्रा करने की इच्छा होगा आ जाना, लेकिन फेयर लाना मत भूलना। उससे अंत में भी मजाक कर दिया। यस, सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। वह हंस पड़ी और बस से नीचे कूद गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। और दौड़ते हुए वह सीधे घर चली गई। रनिंग लिखा है, वो छोटी बच्ची है ना, उसके मन में बहुत उत्साह है, उमंग है कि मैं कहीं से आया हूँ अच्छा काम करके आज। वो खूब जो है कूदते हुए घर चली गई। वो तो कहो कि थोड़ी सी खुशी जो है उनका उदासी में टर्न हो गया, वरना यदि वो सीन नहीं देखी होती गाय को मरते हुए तो आपको बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है खुश होती। लेकिन थोड़ी सी saw how the girl went home. Now the journey is over here. Okay, so let's see here what is going to be. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Bali's aunts. जब वो घर गई तो देखती है कि उसकी मम्मी अवेक हो चुकी थी। अवेक मीन्स सो करके जग जाना। अवेक, अवेक मीन्स सोकर जग जाना। अवेक मतलब गेट अप। नहीं बेटा, ये गेट आउट नहीं है, गेट अप है। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो दैट इज अ वेकिंग, वेक अप। ठीक है, हाँ, सो करके उठने को। क्लियर अनिल? अवेक मतलब गेट अप। तीसरा हाउ actually she had a fear of her mother. So that's why writer have written here कि when she entered in the home, that time her mother had awakened. उसकी मम्मी जो है उठ चुकी थी। And one of auntie had come in her home. उनके घर में एक चाची आई हुई थी। So let's see here what she doing here. The one from South Street, this auntie was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. She telling my auntie was a chatterbox. Once she started, she never stopped. एक बार जब शुरू हो जाती थी तो कभी खत्म होने का नाम नहीं लिखती थी, इसलिए अपने चाची को चैटर बॉक्स नाम रख दी थी। Yes. And where have you been? said her auntie when Bali came in. जैसे ही बली अंदर आती है उसकी चाची पूछ बैठती है, इतने समय से तुम कहाँ थी? मम्मा ने नहीं पूछा। किसने पूछा? चाची ने। बोली कि इतने समय से आप कहाँ थे? या said her aunt when Bali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Bali just smiled, and her mother and auntie went on with their conversation. Directly she didn't give the answer. Ignored. She laughed. And in this way both were busy in talking, and very easily Bali entered in the house. Since they both were very busy, वो तो बहुत बिजी थे, तो वह चुपके से घर में वापस एंटर कर गई। So Bali just smiled, and her mother and auntie went on with their conversation. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside, how can we possibly know about everything? And even when we do about something, we often can't understand it completely, can we? Let's see here what they are talking about, what the conversation is going between them. उनकी मम्मा मतलब मम्मी और चाची के बीच बात हो रही है कि आज संसार में बहुत कुछ हो रहे हैं, हमारे आसपास भी बहुत कुछ चल रहे हैं, बट हमें पता नहीं चलता है। घटना हमारे पड़ोस में भी घट जाती है, बट हमें पता नहीं चलता है। और किसी बात की पता चल भी जाता है तो समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसे घटना क्यों घटी है। इट इज राइट बिकॉज टुडे द पीपल हैव बिकम वेरी बिजी, वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट अदर्स।
हमें दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं है। यही कारण है कि पास पड़ोस में भी घटना घटती है तो किसी को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहे हैं। मतलबी इसलिए हो गए, मतलबी होने के पीछे रीजन है कि हम बिजी हो गए हैं अपने कामों से, राइट। यस, वो यस ब्रेथ बली, यहां पर बली इंटरप्ट करती है। वो बली आके बोलती है हाँ यू आर 100% करेक्ट। व्हाट आस्क हर मदर, मम्मा ने पूछा क्या, तुम्हें क्या पता। व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कहना चाहती हो। ओह शेड बली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। मम्मा मैं भी वही बात कह रही हूँ, आज आस पड़ोस में क्या हो रहे हैं किसी को पता नहीं चलता है। मालूम है क्यों कह रही है गर्ल, क्योंकि उसी घर की बच्ची यात्रा करके चुपके से आ भी गई और किसी को पता भी नहीं चला, इसलिए तो वो कह रही है हाँ मम्मा आपने सही कहा कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं चलता है। वो अपने ऊपर कह रही है लेकिन मम्मी को पता भी नहीं चला कि वो क्या कहना चाहती है बच्ची, राइट। विदाउट आवर नॉलेज जस्ट अ चीट ऑफ ए गर्ल सी इज सेड हर आंटी, आंटी ने कह डाला कि लड़की बिल्कुल चीट कर रही है। लड़की क्या कर रही है, चीट कर रही है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, चीटिंग ना। और देखो ये लड़की जो है अपना नाक कैसे लगा देती है। नाक लगाना मतलब किसी काम में अड़ंगा डालना, डिस्टर्ब करना। नाक लगाना मुहावरा है हिंदी में। पोक माने किसी के काम में दखल अंदाजी देने को कहते हैं पोकिंग करना। क्लियर इट्स ना। उसकी मम्मा कह रही है देखो इतनी छोटी बच्ची है, हम लोग इतने बड़े बात कर रहे हैं, उसी बीच में आकर क्या करती है, टांग अड़ा देती है, नाक लगा देती है। यस, नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो सी वेयर अ ग्रोन लेडी, मानो वो बहुत बड़ी लेडी हो गई हो, ऐसे कर रही है। बली स्माइल टू हरसेल्फ, बली खुद पर हंस पड़ती है। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, लेकिन वो अपने हंसी का मतलब बताना नहीं चाहती है। वो तो जानती है कि मैं ही हूँ ना, लेकिन वो बताना नहीं चाहती है। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाई देयर, लेकिन अब अगला चांस उसे मिलने वाला नहीं था, क्योंकि घर के लोग भी समझ चुके थे, आंटी समझ चुकी थी कि बली जो है बिना बताए घर से आउट है। इसलिए राइटर ने कहा कि देयर वाज नो मोर चांस टू गो आउट फ्रॉम द होम। सो नाउ हियर द लेसन इज गोइंग टू बी ओवर। इट वाज द लेसन मैडम राइड्स द बस। होपफुली you have got it, you understood well. Here the lesson is over.